Hello, dear viewers. Thanks a lot for giving me so much love to my stories. लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा मैंने कैसे अपना न्यू हेयर कट लिया. ओह, आई कांट टेल यू हाउ मच आई लव दिस एंड हाउ मच आई हैव फन विद दिस. बट आई वॉज नॉट लाइक दिस. पहले कभी ऐसा नहीं था. हाँ, I loved getting haircuts when I was little, and it was mostly in barber shop. But I never thought I would love it so much. After getting into teens like other girls, I too started growing my hair. Okay, and until few years back, I had long hair, but something was eating inside me. Something I didn't even know until it happened. अच्छा, पता नहीं क्यों, सच में गाइस मुझे नहीं पता क्यों, मगर जब भी मैं किसी नाई के दुकान के सामने से गुजरती थी तो अपने आप वॉलंटरी मैं अंदर देखने लगती थी कि चल क्या रहा है अंदर. कभी कभी तो कुछ सेकंड्स के लिए खड़ी होकर देखती भी थी कि क्या चल रहा है. ऐसा मेरे साथ ऑलमोस्ट हमेशा होता था जब भी मैं किसी बार्बर शॉप के पास से निकलती थी. नो आइडिया क्यों, सीरियसली. कुछ ईयर पहले मैं ऐसे ही YouTube पर वीडियोस देख रही थी and there was this video on my feed. I opened it and it was a video of a girl with extremely long hair getting a boy cut. इसको क्या हुआ? It kind of amazed me. I mean, मतलब मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था. उसके हेयर तो मेरे से भी ज्यादा लंबे थे. एंड I watched that video on a loop like 3 to 4 times. Next day when I opened my YouTube, again more such videos were there. It slowly became an obsession for me, and I would watch those videos every day. Whenever I would go to my regular parlor, I would imagine myself doing the same in those videos. But the feeling was at its peak whenever I would walk past a barber shop. मतलब क्या बोलूँ मैं, अंदर से जैसे बटरफ्लाइज उड़ने लगती थी. और जब मैं किसी नाई के शॉप पर हेयर कट करवाती देखती थी, I can't even tell you properly कि कितनी अच्छी फीलिंग थी वो. ओके, भावना में नहीं बहते हैं. लेट्स कंप्लीट द स्टोरी. इतना सब चल रहा था मेरे साथ, और जैसे कहते हैं ना, आग में घी डाल देना, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. मेरे घर के इनफैक्ट मेरे विंडो के ठीक सामने एक नाई का शॉप खोल दी थी. इट वॉज अ स्मॉल शॉप. द फ्रंट डोर वॉज एक्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट. इट वॉज अ बिग विंडो शॉर्ट ऑफ डोर. सब कुछ क्लियरली दिखता था उसमें से. Gradually, watching the YouTube videos of women getting haircut and watching the proceedings in the shop became my everyday time pass. Every now and then I would stand in front of the mirror and play with my hair open, and I would pretend that I have to sit next on the barber's chair to get a haircut. Some evening I would even play with the scissors, but कभी हिम्मत नहीं हुई कि सच में काट दूं. It was like a constant battle between my brain and my heart. My heart was
all in for this, but my brain was 50-50. I mean, constantly मैं सोचती थी अगर मैं बॉय कट या शॉर्ट हेयर कट मैंने किया तो लोग क्या कहेंगे, मजाक बनेगा मेरा, ऐसे लोग देखेंगे तो मुझे क्या पता मुझ पर अच्छा भी लगेगा या मैं अजीब दिखूंगी छोटे बालों के साथ। बहुत सारे ख्याल दिमाग में चलते रहते थे। बट इफ आई टेल यू द ट्रूथ, द बेस्ट टाइम आई हैड इन द डे was watching those videos, watching the shop, and then imagine myself in the same situation. Now अभी तक सिचुएशन फिर भी कंट्रोल में थी मेरी, बट 2020 में लॉकडाउन हो गया एंड सारे डिस्ट्रैक्शन खत्म हो गए। जैसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में मैं ऑफिस के काम, घर के काम एंड फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, ये सब था, तो आई हैड डिस्ट्रैक्शन। बट लॉकडाउन होने से आई वॉज एट होम 24/7 and it became very difficult. Every single hour of the day when I was awake, I had this thought in my head of getting a short haircut. What kept me a little away from the idea was that the barber shop was also closed. Yeah. It felt bad whenever I looked out of the window, not seeing it inside, but being it closed kept me away from the idea, because where would I get a haircut when it's not open? आग में घी डल गया एक और बार। YouTube फीड में सेल्फ हेयर कट्स, हेड शेव्स करने वालों की लाइन लग गई। सब कोविड में खुद को ग्रूम कर रहे थे। बस फिर क्या था, एक बार फिर दिल और दिमाग में लड़ाई शुरू हो गई। There were times when I was sitting on my dresser with a scissor in my hand, and I was seconds away from chopping my hair, but हिम्मत नहीं पड़ी। फिर मिड अप्रैल में एक दिन मैं विंडो से बाहर देख रही थी शॉप को। शॉप बंद थी, तो मैंने फोन ऑन कर लिया। न्यू वीडियो आई थी, एक लड़की जो साइड शेव कर रही थी। बट मेन वीडियो देखने से पहले मेरी नजर फिर से शॉप पर गई। शॉप के पीछे से एक लड़का बाहर आने लग गया एंड लग रहा था अभी रिसेंटली उसने हेयर कट किया हो। हाउ इज इट इवन पॉसिबल, शॉप बंद है। आई सेड इट टू माई सेल्फ। बट फिर वीडियो पॉज करके मैंने ऑब्जर्व किया। अराउंड 5 मिनट्स के बाद एक और आदमी पीछे गया शॉप के। इट मेड मी क्यूरियस, so I stood there waiting for him to return. वो आदमी अराउंड 10 मिनट्स के बाद वापस आया शॉप के पीछे से। So it looked like something was different with him. This made me, really curious. Without thinking anything, I just went downstairs and I walked towards the shop. शॉप के सामने पहुंचकर आई ट्राई टू लिसन कि आवाज आ रही है अंदर से या नहीं, बट कोई आवाज नहीं आ रही थी। सो आई स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द बैक। बस पहुंचने वाली थी कि थोड़ा सेंस में आई एंड आई वाज थिंकिंग, व्हाट एम आई डूइंग, कोई देख लेगा तो इट विल बी वेरी एम्बरेसिंग रियली इफ समवन स्पॉट्स मी देयर। आई थॉट इन माई हेड, but then I decided कि छिपकर बस एक बार देख लूंगी, फिर चुपचाप वापस चली जाऊंगी।
जैसे ही मैं शॉप के पीछे पहुंची, आई सॉ ए बैक डोर विच वॉज नॉट शटर्ड. दूसरी तरफ से एक आदमी आया और अंदर चला गया. मैं वॉल के पीछे छुपी हुई थी तो वो मुझे देख नहीं पाया. जब वो अंदर गया तो मैं डोर के पास गई. डोर हल्का सा खुला हुआ था तो मैंने डिसाइड किया कि उससे अंदर झांक कर देखती हूँ. वो लड़का अंदर गया और बाबा ने उसको एक शॉट बॉयकट किया. मैं तो फिर से जैसे अपने ही वर्ल्ड में चली गई थी उसे देखते हुए. जब वो वापस आया लड़का तो मैंने कोशिश की भागकर छुप जाने की, बट बाबा ने मुझे देख लिया था. अरे मैडम, क्या हुआ, आप यहाँ क्या कर रही है? उसने पीछे से आवाज दी. मेरी तो बोलती बंद हो चुकी थी उस टाइम. बोलिए मैडम, क्या हुआ, आप क्या देख रही थी? मैंने पहले भी आपको देखा है शॉप के सामने खड़े होकर देखते हुए. अंदर कुछ करवाना है क्या आपको? उसने जब ये बोला, मैं तो जैसे मेरा फेस रेड हो गया था एम्ब्रेसमेंट से. वो गर्मी ज्यादा है तो मैं आप लड़कियों का हेयर कट करते हो? बड़ी मुश्किल से मेरी जुबान से एक सेंटेंस निकला. उसने हाँ बोला और मुझे शॉप के अंदर ले गया. शॉप अंदर से देखने में डिफरेंट थी सच में. मतलब मुझे लगता था मुझे सब दिखता है बाहर से, बट अंदर से इट वॉज डिफरेंट. I was in short of trance walking into that shop, in awe of everything, actually watching everything around me. He set me in the chair and it was like a dream come true. मैंने शॉर्ट्स पहने थे तो on my lap I could feel the leathery chair. It was so big. I looked like a small child in the chair. सामने एक बड़ा सा मिरर था. All this actually was too much for me. मतलब I had always imagined this. I was in a trance. I was just enjoying the experience. Everything else was just numb, especially my mouth. Because no matter how hard I tried, I was not able to say a word. Seriously. He kept me with this white big chattar, not like the cape that we have in our parlors. He tied it with his hands. I was just looking at myself in the mirror, in my own world of dreams about what was happening actually. Baba ने mirror में इशारा किया and I looked back. He asked me twice, क्या haircut होगा? बट मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी. मेरा फोन पर मैसेज आया तो स्क्रीन ऑन हो गया. ही लुक्ड एट द स्क्रीन. देयर वाज द वीडियो ऑफ दैट गर्ल. उसके साइड पर रेजर चल रहा था. व्हेन ही लुक्ड एट द वीडियो ही सेड नथिंग, just gave me a big smile through the mirror and opened my bun. He then kept my clutcher on the table. बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे, he started combing my hair. I didn't resist because I frankly was not in control. My body was numb. I was just looking in the mirror at myself in the world of my own imaginations. सही शब्दों में मैं तो आउट ऑफ कंट्रोल थी. मुझसे कुछ नहीं हो रहा था. उसने स्प्रे उठाया और मेरे हेयर को पूरा गीला कर दिया. फिर स्कैल्प पर
मसाज करने लग गया। बस यही बच गया था। जब वो मसाज करने लगा तो जैसे मैं सब भूल गई थी कि आसपास क्या है, मैं कहाँ हूँ। सब ब्लर हो गया था मेरे आंखों के सामने से। आई वॉज लिटरली ऑन क्लाउड 9। वो मसाज करते करते रुका, ड्रॉयर से यूस्ट्रा निकाला और ब्लेड चेंज किया मुझे देखते देखते। ये वो टाइम था जब मुझे कुछ बोलना चाहिए था, उसे रोकना चाहिए था। मैंने लाखों बार खुद को इस सिचुएशन में इमेजिन किया। बार बार हर रोज वो वीडियो देखकर मैं खुद को ऐसे ही यहाँ बैठा सोचती थी, मगर मुझे मुंडन नहीं करवाना था। मैं इतने दिनों में ज्यादा से ज्यादा हिम्मत सिर्फ बॉयकट करवाने के लिए जुटा पाई थी, मगर मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही थी। मैं बिल्कुल नम थी चेयर पर। उसने बिना कुछ कहे यूस्ट्रा मेरे सर के बीचों बीच रखा और आगे की तरफ से उसको चलाने लग गया। ओह आई कैन टेल यू क्या फील था वो उस टाइम। मैंने कभी यूस्ट्रा फील नहीं किया था अपनी स्किन पर, कभी नहीं। लाइक बचपन में भी नहीं। हैंड क्लिपर्स तो देखे थे, मगर यूस्ट्रा कभी नहीं। उसके हाथ यूस्ट्रा के साथ आगे आए और मेरे बाल आंखों के सामने से नीचे मेरे गोद में गिर रहे थे। जब मैंने ऊपर मिरर में खुद को देखा तो देयर वाज अ वाइट स्ट्रिप ऑफ स्किन ऑन माय हेड फ्रॉम forehead to crown. It was smooth skin. He didn't look, didn't ask. He just kept his razor back in the middle and shaved another strip of hair. I had never imagined this before, never in my wildest dreams. I had imagined myself sitting on this chair with the hair on top of my shaved clean. It was an odd feeling, a tingling feeling at the same time. I didn't knew it was happy or sad. I was just experiencing. That's it. All just experiencing. उसने राइट साइड में यूस्ट्रा रखा और राइट साइड से बाल साफ करना शुरू किया। फिर लेफ्ट साइड में साफ किया सब। अब बस पीछे के बाल रह गए थे। He pushed my head down. I could see nothing at first, but when he started shaving hair on back, long strands started dropping down again. I could see them rolling down from my shoulder on my lap. Some sat there looking at me, and some went straight down on the floor. Once he was done, he left my head. When I lifted my head, I could see nothing but skin all over my head. अभी तक I was not even thinking मैं कैसे बाहर जा सकती हूँ या लोग क्या सोचेंगे मुझे देखकर। बस अजीब सा फीलिंग हो रहा था। He then rubbed my head from my nape towards upward to the crown and showed me the back of my head with a small mirror. My hand voluntarily went up to feel my head. It felt amazing to touch my bare skin, and it was magical actually. The feel was so good. मैंने सोचा इट्स ओवर, अब वो केप रिमूव करेगा
एंड आई वॉक होम। बट उसने केप रिमूव करने की बजाय सर पर क्रीम डाला और एक ब्रश से पूरे सर पर उसको फैलाने लगा। आई वॉज लॉस्ट ऑफ वर्ड्स। दैट cream was so cold and it felt strange. Once done spreading, he shaved me again. उसने 2 से 3 बार मुंडन किया क्रीम लगाकर मेरा। मैडम चेक करो कितना स्मूथ है, उसने कहा मुझसे। मैंने अपने दोनों हाथों से बस अपना सर रब कर रही थी एंड इट फेल्ट लाइक हेवन। इट वॉज सो स्मूथ कि मेरे हाथ नहीं रुक रहे थे। He then poured something on my head and massaged my head properly. थोड़ा शाइन कर रहा था मेरा हेड। जब मैंने मिरर में देखा तो the feeling was weird beyond belief. I can't describe it in words. Once it was done, he removed a cape amidst all this, and I had completely forgotten that I didn't bring my purse with me. After all, I had just come to check what was going on here. I requested him to pay in an hour because I had forgotten my purse. कोई बात नहीं मैम, नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो दे दीजिएगा, he said. उसको कैसे पता चला मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी? Was it too obvious how much I loved my मुंडन? I was thinking on my way back. सबसे पहले तो बिल्डिंग का गार्ड देखकर चौंक गया मुझे। उस टाइम रियलाइज हुआ कि मैंने क्या किया है। उसकी आंखें इतनी बड़ी हो गई थी मुझे तकला देखकर कि अभी निकल के गिर जाएगी। किसी तरह बिना और किसी की नजर में आए बिना मैं घर आ गई। वो पहला शावर विथ नो हेयर वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। जब पानी की बूंदें पड़ती है ना ऑन योर bald head, it's so soothing. I was in love with myself of what I had done. सारी एंजाइटी, सारा टेंशन जैसे बालों के साथ मूंद दी उसने। That was the story of how it began for me. I loved getting mundan and तब से आज तक there has not been anything that I have liked more. Actually there is, but वो story next week के लिए। अभी के लिए बाय बाय। आई होप आपको मेरा एक्सपीरियंस सुनकर अच्छा लगा होगा। सो सी यू सून।